I'm Abhilash Rajput from Rose Public School, Solali. In the last session, we had studied about the origin of social differences. So, I hope you would have understood कि एक इंडिविजुअल जो होता है वो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है. He has to be identified with डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. ठीक है, लेकिन अब हमें अपने आप को these social groups are basically responsible to create differences, and I also have told you that the identities that are associates to us are often will come to us via two routes. One is the accident of birth, and another one is from our through our choices. So this is how the social groups are basically formed, and these social groups are also associates to the creation of differences. And sometimes these differences became the core reason of a big conflict that turn out into a big disasters, and that has not been good for the cause and for the developmental processes of the country. So I had also explained in the last chapter that how to be accommodate, how to establish this accommodation. Basically, there are two methods that are basically responsible for the mingling, for the effective mingling of these social groups. One is cross-cutting. If we start to apply cross-cutting, it means we are moving ourselves towards we are putting ourselves towards the developmental processes. And if we are if we decide to choose the path of overlapping, then it means we are completely putting ourselves on not accommodating, or we are not on the terms to resolve the conflicts. And sometimes these sort of things, these overlapping situations, creates a big disasters and big obstacles in the path of development processes. This is what so far we had studied. I hope you would have understood. Now I am going to read a little extract from the contents, that is the politics of social results. Now it is a very important thing. Basically, because in a democratic country, the politics has also played a vital role, especially because since you had studied in the 9th standard that democracy form of government has been considered as a best form of government as compared to the other forms of government. So, but there is also a point. In which we could that we need to understand that in what way the politics has played its role when it got to be handled, when it is in the situation of, when it comes in the situation of handling the social divisions. Okay. Sometimes it has given a very good results. It has shown us a very good results. It is putting us towards in a proper manner, in a goal of achievements. But sometimes this has also proved fatal to the nation, and also fatal to the for the survival of democracy too. So I am just reading the extract. Hear it properly. Democracy involves competition among various political parties. Their competition tends to divide any society. If they start competing in terms of some existing social divisions, it can make social divisions into political divisions and lead to conflict, violence, or even disintegration of a country. This has happened in many countries. Now I am going to explain these things through an example of Ireland. वहाँ पे भी जब एक कंट्री की पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल यूनिट जो है, जब वो पर्टिकुलर एक सोशल डिवीज़न को ही लेकर, ठीक है, उसके कोज को उसके कोज को ही लेकर वो आगे बढ़ती है और बाकियों को निगलेक्ट करती है, बाकी सोशल डिविजन्स को निगलेक्ट करती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है.
आयरलैंड में भी ऐसा हुआ। आयरलैंड में भी दो, अब जब पॉलिटिक्स रीजनल रिलीजन मैटर्स में इन्वॉल्व हो जाती है, जब रिलीजन बेस्ड सोशल डिविजन्स में वो एंटर हो जाती है, जैसे आयरलैंड में हुआ, वहाँ पे प्रोटेस्टेंट 53% थे और कैथोलिक जो थे वो 44% थे। अब जो प्रोटेस्टेंट थे दे वर कंसिडर्ड एज द यूनियनिस्ट, ठीक है, वो यूनियनिस्ट कंसिडर करते थे एंड दे वांट टू be a part of, they want that the Ireland should be a part of United Kingdom. लेकिन दूसरी तरफ जो कैथोलिक थे, ठीक है, they were very nationalists, वो एक कैथोलिक बेस्ड नेशन की इस्टेब्लिशमेंट चाहते थे। तो ये जो अब पॉलिटिकल जो ग्रुप्स थे वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो कैथोलिक गवर्नमेंट थी, कैथोलिक मोटिवेटेड सपोर्टेड जो गवर्नमेंट थी, अब उन्होंने कैथोलिक्स का कोज जो है उसको ज़्यादा हाईलाइट किया। उन्होंने प्रोटेस्टेंट के कोज को जो है, प्रोटेस्टेंट्स की जो डिमांड्स थी उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब इससे क्या हो गया, पूरी कंट्री में जो है काफ़ी समय तक एक सिविल वार लाइक सिचुएशन ही चलती रही, आपस में बहुत कर्फ्यू, वायलेंस, ये सब चीज़ें चलती रही। इवन इस मैटर में यूनाइटेड किंगडम जो है उसने भी इंटरफेयर किया। They also had lost so many lives of their soldiers. They had lost their soldiers too. ठीक है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस हुई, प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शंस हुई, पब्लिक डिस्ट्रक्शंस हुई, काफ़ी खून खराबा हुआ। एट द एंड आखिरकार 1998 में जाके दे कम टू द कॉम्प्रोमाइज, दे कम टू अ सिचुएशन वेयर दे आर एग्रीड टू become a part of the they were come to the point that where they were agreed to choose a path that is beneficial for the development of Ireland. लेकिन तब तक इतने टाइम तक वो एकोमोडेट नहीं कर पाए। जब तक वो एकोमोडेट करने की सिचुएशंस में नहीं आए तब तक वो अपना बहुत कुछ खो चुके थे, ठीक है। सो दिस इज द वन एग्जांपल। एक और एग्जांपल इसके साथ मैं आपको बताता हूँ, एक यूगोस्लाविया, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप की एक नेशन था, कम्युनिस्ट नेशन था। वहाँ पे भी यूगोस्लाविया, आज की डेट में यूगोस्लाविया आपको मैप में कहीं नहीं दिखाई देगा, लेकिन यूगोस्लाविया जो था वहाँ पे भी एथनिक वेस्ट, ठीक है, रेशियल वेस्ट, सोशल डिविजन्स को जो है तवज्जो दी गई, ठीक है। वहाँ पे भी जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, यूगोस्लाविया का जो पॉलिटिकल ग्रुप्स था, जो नेशनलिस्ट थी, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक पर्टिकुलर सोशल डिविजन्स को ही सपोर्ट किया, ठीक है। और उसका नतीजा क्या हुआ, बाकी सोशल डिविजन्स जो थे, बाकी जो एथनिक ग्रुप्स थे, दे स्टार्ट टू recognize themselves in the country as the alliance, ठीक है। वो अपने आप को एक बिल्कुल कट ऑफ सब पाते थे, ठीक है। सो व्हाट वाज हैपेंड, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, ये जो सोशल, वहाँ पे ओवरलैपिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई, दे आर नॉट रेडी टू अप्लाई द क्रॉस कटिंग मेथड्स, दे कम्प्लीटली डिफाइड द पाथ ऑफ क्रॉस कटिंग मेथड्स। सो व्हाट वाज हैपेंड कि जो कंट्री थी, यूगोस्लाविया जो थी, वो 6 छोटे छोटे देशों के रूप में बंट गई, ठीक है। इट हैज़ गिवन अ बर्थ टू द 6 न्यूली बॉर्न नेशन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि कई बार इस पर बात ये कहने की कोशिश की जा रही है, समझाने की बात ये की जा रही है कि डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी है और अगर आप सोशल ग्रुप्स हैं, हाँ इस ये है। अब ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे सपोज करो आजकल हम आपको एक ऑनलाइन वे में आजकल आपकी क्लासेस दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, अपने पढ़ना है, आपकी क्लास लगनी है, ठीक है। उन्हें भी मालूम है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, सो दे आर अलाउइंग यू टू यूज़ द एंड्रॉयड फ़ोन। अब आप इस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, अब हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, हम देख नहीं रहे हैं, वी आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। हम आपको एक बिल्कुल, हम अपना काम कर रहे हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी अपना काम उतनी ही ईमानदारी से कर रहे होंगे एज बीइंग ए स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन आपके पेरेंट्स ने भी आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको फ़ोन पकड़ा दिया, लेकिन अब आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आप उनके ट्रस्ट को ओवरलैप कर रहे हैं या आप उनके ट्रस्ट को क्रॉस कटिंग वे में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप अब आप इस पूरे प्रोसेस को एक क्रॉस कटिंग वे में कर रहे हैं कि नहीं यार,
आई हैव टू डेवलप माई सेल्फ, मुझे अपनी स्टडी के साथ जुड़ना है और ये एक माध्यम चल रहा है, तो मुझे इससे अपने आप को उभारना है, ठीक है, मुझे इसका बेनिफिट लेना है, मुझे इसका फ़ायदा लेना है, ठीक है। तो या तो आप उस हिसाब से सोचेंगे और या आप इसको ओवरलैप भी करेंगे, और यार फ़ोन में देख लो, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ये चलाते हैं, देखा जाएगा कौन को होमवर्क कौन चेक कर रहा है, जब स्कूल खोलेंगे तब देखा जाएगा, तब कर लेंगे बैठ के, मैं उसकी कॉपी दे दूँगा, उसकी कॉपी दे दूँगा, अब तो ये क्या हो गया, ये ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे माध्यम, हम ये जो चीज़ें हैं इनको समझने के लिए हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ इसको कोरिलेट करें, देन वी वुड एबल टू बेटर अंडरस्टैंड इट। अभी आपको पॉलिटिक्स और ये बड़े लेवल की बातें जो हैं, बड़ी बड़ी टर्म्स जो हैं, जो आपको अभी इतने समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, ये अभी आपके सिर के ऊपर से निकलेंगे, लेकिन ये आपको तब समझ में आएंगी व्हेन यू स्टार्ट कोरिलेटिंग देम विद योर सराउंडिंग। आपकी सराउंडिंग में जो भी है, आप स्कूल में जाते हैं, आपके कुछ अच्छे दोस्त बनते हैं, कुछ को आप बनाना चाहते हैं, तो जब आप किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्रॉस कटिंग मेथड आजमाना पड़ता है, ठीक है। वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी को बोलोगे, किसी को आपने किसी से आपने कोई पेन लेना है, आपके पास पेन नहीं है, आप क्लास में आपका पेन बंद हो गया, वो चल नहीं रहा है, आप किसी को बोलते हैं, ओए मेरे को पेन देना। व्हेन यू यूज दिस लैंग्वेज, अगला बंदे का रिएक्शन क्या होगा, वो आपको इग्नोर करेगा, वो आपको रिफ्यूज़ कर देगा। पर अगर आप यही चीज़ जब उसको बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन फॉर अ मोमेंट, ठीक है, तो वो आपको जरूर आपको असिस्ट करेगा। अगर अगर उसके पास नहीं भी होगा तो वो कहीं से आपको अरेंज करके भी देगा। सो दिस इज़ व्हाट द क्रॉस कटिंग मेथड इज। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें हमें आप छोटे लेवल में समझिए, आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को अपने दिमाग में लाते हुए इन चीज़ों को क्लियर करिए, देन यू वुड एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स that the book wants to make you understand. The book actually want to make you understand, or what exactly we would like to make you understand, ठीक है। तो ये एक इस तरह से चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको रीड आउट करके बताता हूँ कि ऐसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जब पॉलिटिक्स जो है, जब वो सोशल डिविजन्स में इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस इस फॉर्म में भी आते हैं कि जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताया आयरलैंड के, यूगोस्लाविया के, ठीक है, दैट लीड्स सम पीपल टू कंक्लूड दैट पॉलिटिक्स एंड सोशल डिविजन मस्ट नॉट बी अलाउड टू मिक्स। इन सब एग्जाम्पल्स को देख के लोगों ने ये कंक्लूजन निकालना स्टार्ट किया कि पॉलिटिक्स और सोशल डिवीज़न को आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर हमें एक अच्छा डेमोक्रेटिक सेटअप इस्टेब्लिश करना है तो हमें इन चीज़ों को आपस में मिक्स नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। दे थिंक दैट इट वुड बी बेस्ट इफ देयर आर नो सोशल डिविजन्स इन एनी कंट्री। इफ सोशल डिविजन्स डू एग्जिस्ट इन अ कंट्री, they must never be expressed in politics. So देखो, जब हम लोग सीखते कहाँ से हैं, हम लोग सीखते तभी हैं जब हम गलती करते हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी आज तक, अब आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ी थी 9th में, उस समय डेमोक्रेटिक सेटअप कैसा था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो डेमोक्रेटिक सेटअप, वो गलतियाँ होती गई, कुछ नई चीज़ें आती गई, उनको उसमें रखा, ऐड किया जाने लगा, ठीक है। और इस तरह से आज डेमोक्रेसी का जो एक डेमोक्रेटिक नेचर है वो बिल्कुल एक अलग है। इसीलिए आज मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं इन द वर्ल्ड, ठीक है, दे हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन इस डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ गवर्नमेंट को और भी स्ट्रेंथन, और भी इसको मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। So they also had concluded, ठीक है, they also learned some new experiences, ठीक है, through the happenings of these events, these incidents. Through these incidents that occurred in Ireland and Yugoslavia, they had come to understand कि पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स जो है दोनों को मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी कंट्री में सोशल डिविजन्स हैं भी तो उन्हें पॉलिटिक्स में एंटर, उनका पॉलिटिक्स से बिल्कुल उसको दूर रखना चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू द
हाँ, इसके एक और इफेक्ट भी आता है सोशल डिवीजन का. सोशल डिविजन्स अफेक्ट वोटिंग इन मोस्ट कंट्रीज. पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रेफर some parties more than others. In many countries, there are parties that focus only on one community. Yet all this does not lead to disintegration of the country. ऐसा भी होता है, ठीक है. कई जगह ऐसा भी होता है, ठीक है, कि सोशल डिविजन्स जो है वो वोटिंग सिस्टम को तो जरूर वो करता है, ठीक है, लेकिन कई बार कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो बाकियों के मुकाबले में किसी पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट देना पसंद करते हैं. इन मैनी कंट्रीज देर आर पार्टीज दैट फोकस ओनली ऑन वन कम्युनिटी. लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं यहाँ पर जो है ज़्यादा ध्यान जो है वो किसी एक खास कम्युनिटी की तरफ ही दिया जाता है, ठीक है. तो इस तरह से ये एक बहुत वेरिएशंस हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है, जो हमें नज़र आती हैं. हर जगह में डिसइंटीग्रेशन नज़र भी नहीं आती है, ठीक है, कई जगह डिसइंटीग्रेशन नहीं नज़र आती है, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, देयर आर चांसेस कि ऐसे स्थिति में जब हम किसी के जो उनके आगे बढ़ने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब आगे बढ़ने की जो उनकी जब हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो नेचुरली बात है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आज नहीं तो कल, ठीक है ना. तो इसीलिए हमें उन सिचुएशंस को हमेशा ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए. हम अगर सिर्फ ये हम अपने आप को सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट में देखेंगे कि ठीक है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इज़न्ट इट, ठीक है. तो जैसे सपोज करो आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे घर होते हैं, हर घर में आपके साथ आपके रिलेशंस अगर आप सोचोगे नहीं हम ही बेस्ट हैं तो आपका नेचुरली आपकी एक सोसाइटी में आपकी एक अलग इमेज होगी, ठीक है. आपके आना जाना बहुत कम होगा, आपके साथ मिक्स, आपके दुख सुख में लोग बहुत इतने ज़्यादा उस खुल के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आपके दुख और सुख में शामिल हो तो आपको भी उनके उसमें शामिल होना पड़ेगा, क्रॉस कटिंग आजमानी पड़ेगी. अगर क्रॉस कटिंग नहीं करेंगे तो यू वुड बी कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड, ठीक है. तो ये एक बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि ये एक दोनों साइड से एक अपनी सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं अलग अलग ग्रुप की उनको हाईलाइट, उनको समझना, उन्हें उजागर करना, ये हमारी समझ होनी चाहिए. नो, अब किसी भी इसके जो आउटकम्स होते हैं सोशल डिविजन्स के वो 3 डिटरमिनर्स पे डिपेंड करते हैं. द फर्स्ट इज, ध्यान से सुनिए, our first outcome depends on how people perceive their identities. If people see their identities in singular and exclusive terms, it becomes very difficult to accommodate. अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं हूँ, मैं ही सुपीरियर हूँ, मेरी कम्युनिटी ही सुपीरियर है, मेरी कम्युनिटी मेरे धर्म का, मेरी कास्ट का ही दबदबा होना चाहिए, then it would be difficult for you to accommodate. आपकी ऐसी सोच जो है वो दूसरों के साथ फिर एक प्रॉपर सहभागिता नहीं बना पाएगी, ठीक है. तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. ओवरलैपिंग आ गई ना यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ओवरलैपिंग आ गई. ओवरलैपिंग के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ ओवरलैपिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, वहाँ पे आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ठीक है. तो एक डिटरमिनर ये होता है. आप आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का यही था, ठीक है, कि वो अपने आप को इंडिविजुअल पोसेसिबिलिटी उनकी ज़्यादा थी, तो दैट इज़ वाई दे वर नॉट एबल टू एकोमोडेट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है ना. सो सेकंड आउटकम जो है वो आता है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी. दूसरा डिमांड ये होता है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपकी डिमांड्स को, जो सोशल डिविजन्स हैं उनकी डिमांड्स को किस तरह से रेज अप करते हैं, किस तरह से रेज करते हैं, ये उनके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो सेकंड डिटरमिनर ये है. कई बार क्या होता है कि सिर्फ जैसे सपोज करो वोट देने के लिए, ठीक है, कि यार कोई पॉलिटिकल ग्रुप है कि मैंने गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका मिले, इस कास्ट की ज़्यादा मेजोरिटी है तो वो भड़काएगा, ठीक है, दूसरों के खिलाफ भड़काना, दंगे फसाद करवाना, सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इजंट इट. तो और अगर आप सभी के साथ लेके चलते हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बेशक
उसमें बहुत सारे लीडर्स हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लीडर्स हैं, लेकिन वो बाकी उन जिनकी जो मेजोरिटी में नहीं है, जो सोशल ग्रुप्स, ठीक है, उनके भी बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं, तो नेचुरली बात है वो रिजल्ट्स कुछ और होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो आपकी डिमांड को किस तरह से रेज अप करते हैं। तीसरा आता है, थर्ड आउटकम जो है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। कि जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग ग्रुप्स की जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करती है। श्रीलंका में क्या हुआ, वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या तवज्जो दी, सिन्हालीस कम्युनिटी की तवज्जो दी। उन्होंने तमिल्स की मांग को ढंग से सीरियसली, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझा, ठीक है, कि उनका माध्यम क्या था, फॉर ऑन व्हाट सेंस दे एक्चुअली just appraising their demands, ठीक है। So they had defied their demands for a very long period. Initially they had tried to impress the government through political way, through political possessions, ठीक है, but later on it took a shape of military group और civil war हो, और आज श्रीलंका कहाँ है। तो वहाँ पे किसको डिसीजन किसे लेना था, उस गवर्नमेंट को लेना था। अब गवर्नमेंट ने उस समय उन सोशल ग्रुप्स को की डिमांड्स को सीरियसली नहीं लिया और नतीजा गड़बड़ेशन हो गई, isn't it? अब आप इस चीज़ को, आजकल कोरोना चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, आप देखें मोदी जी जब भी कोई अपना भाषण देते हैं या कुछ भी देते हैं तो वो अलग अलग वर्गों को, ठीक है, अलग अलग वर्गों को जो है उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं। कुछ है जो व्यापारी वर्ग है, कुछ है काम करने वाला वर्ग है, कुछ मजदूर वर्ग है, कुछ एग्रीकल्चरिस्ट हैं, कुछ बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं। अब हर ग्रुप्स की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, अपनी अपनी सफरिंग है, अपने अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने अपने डर हैं, ठीक है। तो एज बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, उन्हें उन सब सोशल ग्रुप्स की डिमांड्स को सुनना है, ठीक है, और उसे एकोमोडेट करना है। इसीलिए उनका जब भाषण सुना जाता है तो वो सब लोगों की ध्यान किस चीज़ में होती है कि ये क्या बोलने जा रहे हैं, ये क्या चीज़ कर रहे हैं, और उसके हिसाब से लोग जो हैं वो उसके ऊपर एक्ट या रिएक्ट करेंगे। सो इस तरह से सोशल डिफरेंसेस जो हैं, तो आपने इनके बारे में पढ़ा, ये मैं बताना चाहता हूँ, यही एक हमारे चैप्टर में था, ठीक है। तो इसलिए इसको आप रीडिंग, चैप्टर की रीडिंग भी ढंग से करें, ठीक है। एट द एंड, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड विलिंगनेस टू एक्कोमोडेट इट डू नॉट कम अबाउट इजीली। पीपल हु फील मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड हैव टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिसेस, ठीक है। तो डाइवर्सिटीज में ऐसा होगा, हमारे को डेमोक्रेसी में अगर डाइवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ पे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ये हर एक को एक अधिकार मिला होता है कि वो अपनी बात को रखे। लेकिन जब उसकी बात को नज़रअंदाज किया जाएगा, उसके जो सोशल डिफरेंसेस को जो है ओवरलैप किया जाएगा, तो उसको गैप में रखा जाएगा, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब वो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों, ओवरलैपिंग कम हो, जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा अलग अलग सोशल ग्रुप्स में ओवरलैपिंग कम होगी, क्रॉस कटिंग मेथड्स ज़्यादा आजमाए जाएंगे, वो कंट्री जो है वो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी। सो थैंक यू, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कल आप मेरे से 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, जब मर्जी आप, कम से कम जब भी आपको टाइम मिलता है, मतलब 12 से 2 बजे के बीच में, मतलब 2 बजे तक आपको जब भी मौका मिले, जब भी आप इसे पढ़ लें चैप्टर को, तो आप कल मेरे से पूछ सकते हैं। कल नहीं आपको टाइम मिलता है, आप अगले कल पूछ लें, ठीक है। एट एनी टाइम यू आर फ्री टू आस्क मी अ क्वेश्चन एट एनी टाइम, बट 2 बजे से पहले, 2 बजे के बाद नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आपको होमवर्क एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने, आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये क्वेश्चंस 1, 2, 3 जो हैं वो आपने, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 5 मार्क्स के हिसाब से करना है,
और 2 और 3 मार्क्स के हिसाब से करने हैं। और बाकी जो हैं ये आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चंस हैं, इन्हें ज़रूर करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर्ली रीडिंग करिए। बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जब हमारी क्लासेस लगेंगी तो मैं उस समय करूँगा। अभी आप ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, अभी आप सिर्फ कंटेंट और कंसेप्ट को समझिए और ये जो 1 2 3 क्वेश्चंस दिए मैंने इन्हें करिए और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो करिए। ठीक है, बाकी आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको स्कूल ऐप भी अपनी रेगुलरली चेक किया करें, मैं स्कूल ऐप में भी आपको क्वेश्चंस भेजता हूँ। ठीक है, और एक्स्ट्रा मार्क्स की ऐप भी डाउनलोड करें, उसमें आप अपना टेस्ट असेसमेंट भी कर सकते हैं कि आपने चैप्टर रीडिंग किया है, वीडियो देखा है, तो उसके बाद आपको आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना बढ़ा है। तो इस तरह से आप सभी पैटर्न्स, स्कूल ऐप, एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप, जो मैं भेज रहा हूँ अपना वीडियो, वो भी देखिए और चैप्टर की रीडिंग भी करिए। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इन सब चीज़ों को फॉलो करिए और सब चीज़ स्मूथली चलती रहे। और आप अपना होमवर्क रेगुलरली करें, सिंसियरली करें। ठीक है, और मेरे पर्सनल नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके भेजें। थैंक यू वेरी मच।